Hello dear student, welcome to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. I belongs to the Department of Chemistry. Myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. And I am going to teach you the 5th unit of chemistry, that is thermodynamics. This is the overall syllabus of BSc first year of chemistry subject. It includes 6 units. So let's start with that of the thermodynamics. This is the overall syllabus included in a thermodynamics unit, out of which some points are completed in a previous lectures. So let's start the lecture number 5th of 5th unit, that is thermodynamics. Now, in a previous lecture, we deals with the relationship between pressure and volume. पिछले लेक्चर में हमने देखा था देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहला है प्रेशर, सेकेंड वन इज़ द वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज़ द टेम्परेचर. इन दिस लेक्चर वी आर डीलिंग विथ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. वन बाय वन एक एक लेक्चर में हम ये तीनों में जो रिलेशंस है उनके इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेशर और वॉल्यूम का इक्वेशन डिस्कस किया. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट विद द second, that is relationship between temperature and volume. Now the energy change and the heat capacity of an ideal gas are related as, there is a equation. एक इक्वेशन दिया हुआ है, that is du is equal to cv dt. what is du? du क्या है? du is a change in internal energy. change in internal energy. dt is a change in temperature, and cv is nothing but a heat capacity at a constant volume. अगर internal energy change होती है तो it is because of the change in temperature. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर temperature of system change होता है then the internal energies also get changed. वो भी change होगी with respect to the heat capacity. This is for an ideal gas. एक और इक्वेशन दिया हुआ है, that is dw is equal to minus pdv, where dw is nothing but a change in work done. change in work done, or it can be simply as a work done. P is a pressure of system and dv is a change in volume. And there is a one more thing, वहाँ पे और एक चीज़ है, that is minus sign. There are two type of condition. एक तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा. अगर एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. एट दैट स्टेज द माइनस साइन हैज़ बिन इंडिकेटेड हियर. अगर वहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, मतलब दैट टर्म इज़ पॉजिटिव, देन उसे कहा जाएगा कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स द कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन? एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ता है, द सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग, या फिर सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इन एक्सपांशन. वहाँ पे dw इज इक्वल टू माइनस पी डी वी होगा. बट अगर dw इज इक्वल टू सिर्फ पी डी वी होगा
तब ये डिक्लेयर्ड होता है कि द सिस्टम जो है वो कॉम्प्रेशन में जा रहा है, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीजेज एट फाइनल स्टेज, मतलब पहले जो वॉल्यूम रहेगा उससे फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा वो कम रहेगा, मीन्स द कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस, मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम. Now next point is that adiabatic processes. For adiabatic process we know that Q is equal to 0. What is adiabatic process? Adiabatic process means the system cannot absorb or cannot eject the heat. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई भी लेन देन नहीं होगा, means heat is not absorbed by the system or not ejected by the system to the surrounding. ना वो सिस्टम हीट दे पाएगा, ना वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहेगा. उस प्रोसेस में हम बोलते हैं कि Q is equal to 0 and that type of process is known as the adiabatic process. Now according to the first law of thermodynamics, it has been given that du is equal to dw because Q is equal to 0. At that stage du is equal to dw. Now we know that du is equal to dw. If the left hand side is equivalent, then also right hand side is also equivalent. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा. सो हेंस वी कैन राइट द डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी विच इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी. ये दो चीज़ों का काम है तो इसे अलग रख दिया. तो वी हैव नाउ द सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. अब यहाँ पे हमें चाहिए कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बट यहाँ पे प्रेशर भी है तो वी हैव टू रिमूव इट, उसे हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? वी हैव टू जस्ट मॉडिफाई अ इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. नाउ दिस इज द इक्वेशन. वहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर दिख नहीं रहा है, वो कैसे? We know that for a ideal gas PV is equal to nRT. अगर PV is equal to nRT है तो उस इक्वेशन से P की वैल्यू क्या आएगी? P is equal to nRT अपॉन V. सो वही P की वैल्यू यहाँ पे पुट की है. तो द प्रीवियस इक्वेशन दैट इज CV dt विच इज़ इक्वल टू माइनस PdV अब मॉडिफाई हो गया CV dt इक्वल्स टू माइनस NRT अपॉन V इंटू DV. अब क्या करना है? इन अ नेक्स्ट स्टेप ऑल द T टर्म्स, टेम्परेचर के जो टर्म्स है वो एक साइड में लेके जाइए और वॉल्यूम के जो टर्म्स है वो एक साइड में ले जाइए. सो दिस V इज़ 1 अपॉन V, हेंस इट कैन बी रिटन एज अ dV अपॉन V और यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़. सो माइनस dV अपॉन V. नाउ ये NRT यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा. देन द इक्वेशन बिकम CV अपॉन NRT इंटू dt. तो T को dt के साथ ले गए तो कैसे लिखेंगे? CV अपॉन NR इंटू dt अपॉन T विच इज़ इक्वल टू माइनस dV अपॉन V. Okay. Now dt upon t can be write as a dln t and similarly dv upon v को हम dln v लिख सकते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? CV upon nr as it is dln t which is equal to minus sign as it is dln v. Now ये डिफरेंशियल मोड में है, इसे सिंप्लीफाई करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. हेंस
integrating the above equation within a suitable limit. टेम्परेचर की लिमिट क्या रखेंगे? दैट इज T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर. वैसे ही वॉल्यूम के लिए रखेंगे V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम. हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इज CV अपॉन NR इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट T1 टू T2 into dln, which is equal to integration limit of V1 to V2 dln V. इसे सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या मिलेगा? दैट इज CV अपॉन NR, ये एज इट इज रह जाएगा. ln ऑफ T ऑफ लिमिट T1 टू T2 इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ V V1 टू V2 लिमिट. नाउ इसे सॉल्व करने के बाद में वी गेट दिस टर्म, दैट इज ln ऑफ अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट. सो द इक्वेशन बिकम CV अपॉन NR, ये एज इट इज रह जाएगा. CV अपॉन NR ln ऑफ T2 अपॉन T1 which is equal to minus ln of V2 अपॉन V1. बट माइनस साइन निकालने के लिए ये जो टर्म है V2 अपॉन V1 उसे रिवर्स कर देंगे तो वी गेट प्लस ln ऑफ V2 अपॉन V1 का हो जाएगा V1 अपॉन V2. सो इक्वेशन बिकम CV अपॉन NR जो एज इट इज़ है ln ऑफ हायर लिमिट टू द लोअर लिमिट T2 अपॉन T1, ये माइनस साइन चला गया इसलिए ln ऑफ V1 अपॉन V2. नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन. बट इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. बट वी नो दैट CV इज इक्वल टू CP माइनस NR. CV is equal to CP minus NR. Hence, putting the value of CV in the sense of CP minus NR, क्या मिलेगा? CP minus NR upon NR ln of T2 upon T1 equals to ln of V1 upon V2. ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, सिर्फ CV के जगह CP minus NR आएगा. सो इक्वेशन क्या हो जाएगा देन? दैट इज CP माइनस NR अपॉन NR ln ऑफ T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू ln ऑफ V1 अपॉन V2. नाउ वी नो दैट लॉग टेबल जो रूल लॉग टू द बेस 10 पे लगता है वही रूल लॉग टू द बेस E पे भी लगता है. ln इज नथिंग बट अ log टू द बेस E. ln क्या है? ln मतलब log टू द बेस E है. इसीलिए जो रूल्स log टू द बेस 10 के है वही रूल log टू द बेस E के भी है. हेंस पहला रूल ये है, अगर log ln या फिर log टू द बेस E या फिर 10 ln के आगे अगर कोई टर्म है तो उसे हम इसके पावर के तौर पे लिख सकते हैं. हेंस द इक्वेशन नाउ मॉडिफाइड एज ln ऑफ T2 अपॉन T1 दिस टर्म. अब ये जो टर्म है वो चला जाएगा इसके पावर में, बिकॉज लॉग का रूल है A इंटू लॉग B. वो कैसे लिख सकते हो आप? log ऑफ B टू द पावर A. सो ऐसे लिख सकते हो. हेंस फॉर एग्जाम्पल A log of B can be written as log of B to the power A. ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज द रूल फॉर log. हेंस इसी रूल के हिसाब से CP माइनस NR जो है वो चला जाएगा इसके पावर के रूप में. हेंस द इक्वेशन मॉडिफाइड एज
the ln of T2 upon T1 to the power Cp minus nr upon nr, which is equal to ln V1 upon V2 as it is. Now next one, अगर ln of A या फिर log of A is equal to log of B, then we can write A is equal to B. Because A is equal to B, then दोनों के log भी इक्वेलेंट रहेंगे. इसी हिसाब से यहाँ पे ln है, this is your ln of this term and ln of this whole term. Hence ln कैंसिल करके इक्वेशन क्या आएगा, T2 we can write T2 upon T1 as it is to the power Cp minus nr upon nr equals to V1 upon V2. Now ये जो टर्म है, इस टर्म को इसके पावर के रूप में लिखना है, V1 अपॉन V2 के पावर के रूप में लिखना है. तो इट इज़ ए रूल दैट अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 1, देन इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1. या फिर इट कैन बी रिटन एज, अगर एक कोई 10 टू द पावर x अगर है तो b का पावर अगर यहाँ पे लेके जाना है तो इट इज़ बिकम 10 इज इक्वल टू b टू द पावर माइनस x या फिर 1/x. ये लिख सकते हैं आप. दिस इज़ द रूल, मैथमेटिकल रूल, ये पता होगा आपको. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द T2 अपॉन T1, ये जो टर्म है जो पावर में बैठा है वो रिवर्स होके V1 अपॉन V2 के वहाँ चला जाएगा. तो वो रिवर्स होने के बाद में कैसे दिखेगा, दैट इज NR डिवाइडेड बाय Cp माइनस NR, Cp माइनस NR. बट वी नो दैट द Cv इज इक्वल टू Cp माइनस NR, Cv इज इक्वल टू Cp माइनस NR, Cv इज इक्वल टू Cp माइनस NR. बट हमें यहाँ पे NR की वैल्यू चाहिए, तो NR क्या हो जाएगा, NR इज नथिंग बट Cp माइनस Cv. तो पुट द वैल्यू ऑफ NR एज अ Cp माइनस Cv. Cp माइनस Cv अगर आप लिखते हो इन द प्लेस ऑफ NR, देन हमें क्या मिलेगा, द इक्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड एज NR के जगह क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv. तो पुट द वैल्यू ऑफ NR एज ए Cp माइनस Cv, तो ये NR के जगह Cp माइनस Cv आ गया. यहाँ पे भी NR है तो उसके जगह पे भी Cp माइनस Cv आएगा. मीन्स Cp माइनस Cp माइनस Cv मीन्स Cp माइनस Cp माइनस Cv, ये NR की वैल्यू हो गई. हेंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे Cp गेट कैंसर. हेंस क्या बच जाएगा, वहाँ पे बच जाएगा Cv ओनली. हेंस द इक्वेशन बिकम द Cp माइनस Cv डिवाइडेड बाय Cv. हेंस द फाइनल इक्वेशन T2 अपॉन T1 जो ऊपर का एज इट इज़ है इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 to the power Cp minus Cv upon Cv, where the Cp and Cv are the heat capacity at a constant pressure and constant volume respectively. V1 is the initial volume, V2 is the final volume, T2 is the final temperature and T1 is the initial temperature. So this is the relation between temperature and volume. So that's it for this lecture. In the next lecture we will start with the relationship between pressure and temperature. Up till then, take care, be safe.
Thank you very much.